सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। Thank you, Mr. President. Namaskar and good evening to all of you. We're debating India's path tonight, and I could wrap my argument in one sentence borrowed from the White House. Go to New Delhi and see it for yourself. But I've been given more time than that, so I will tell you what I see. Earlier this week, I was on my way to the Delhi airport. There was a lot of traffic. At one point, the car stopped. On the roadside, I saw two vendors. One was selling fruit, the other was selling coconut water. What caught my attention was not what they were selling, but how they were selling it. Both had a QR code prominently displayed. And every single customer walked up to them, scanned this QR code, and paid for their purchase, every single one of them. To me, this is a picture of today's India. ये वीडियो है हाल ही में हुई लंदन में ऑक्सफोर्ड यूनियन की भारत और पीएम नरेंद्र मोदी पर एक डिबेट की, जहां पर भारत से कई फेमस पर्सनैलिटीज इनवाइट की गई थी, जैसे फेमस जर्नलिस्ट पालकी शर्मा, आकाश बनर्जी और प्रशांत भूषण। और इस डिबेट का टाइटल रखा गया This house believes that Modi's India is on the right path, यानी कि यह सदन मानता है कि मोदी का भारत सही रास्ते पर है। और यहाँ ऑक्सफोर्ड यूनियन की इस डिबेट में भारतीय संस्कृति और पीएम मोदी के महान कामों को प्राउडली रिप्रेजेंट करने के लिए मौजूद थी पालकी शर्मा उपाध्याय, जो अपने सनातन धर्म की पारंपरिक साड़ी पहनकर इस डिबेट में भारत को गर्व से रिप्रेजेंट करने के लिए पहुंची थी। पालकी शर्मा भारत की एक शानदार रिपोर्टर है और वर्तमान में ये WION यानी कि वर्ल्ड इज वन चैनल पर रिपोर्टिंग कर रही है। उनकी रिपोर्टिंग बहुत ही स्ट्रिक्ट, अनबाइस्ड और भारत के हित में होती है। तो जब इस डिबेट में बैठे हुए भारत से आए हुए सभी लीडर्स और पर्सनैलिटीज बारी बारी भारत की ग्रोथ रेट को नीचा दिखाने में लगे हुए थे, तभी पालकी शर्मा ने भारत से आए हुए इन सभी एंटी नेशनलिस्ट और एंटी हिंदू प्रोपेगेंडा फैलाने वालों को चतुराई से टारगेट करते हुए भारत की ग्रोथ रेट के स्टिक आंकड़े बताते हुए सभी की बोलती बंद कर दी। और भारत की ग्लोबल पावर के आंकड़े बताते हुए इन्होंने कहा कि आज का भारत एक धक्का मुक्की करने वाला देश नहीं है, यह विश्व शक्ति है। To me, these things signify the path that India is on. The previous speakers have defined the motion well, but in case the evening drinks have kicked in, let me repeat. This house believes Modi's India is on the right path. And how do you determine if the path is right or wrong? You look at numbers, data, surveys, reports. I shall refer to all of these as I make my arguments. But I also want to dwell on something that's more personal, more important, I think, yet unquantifiable. I'm talking about the experience of living in today's India. I have lived in many Indias. The weary India where exciting policies and positions were abandoned. The self-doubting India where decisions were taken based on global opinion. And today a more confident India where the world comes for leadership and inspiration. You cannot put a premium on that. Indians are more prosperous at home and hence more confident abroad. Let me also tell you what I saw at the airport here in London, at the immigration counter. I saw Indians proudly flaunting their passport, none of the fidgeting or self-doubt of the last century. And if I may add, the immigration officer almost looked impressed. She was either a fan of India or just worried that she was holding up one of Rishi Sunak's relatives. We are proud of what we share with the world. Bollywood, masala chai, yoga, cricket. India today is a soft power giant. At the same time, India is not a timid democracy that tolerates terrorism or betrayals. When Pakistani terrorists attacked Kashmir's Pulwama, India carried out surgical strikes on Balakot. Today's India is not a pushover country. It's a world power denied. पालकी शर्मा का भारत पर ये स्पीच कुछ वैसा ही प्रतीत हो रहा था कि जैसे आज से लगभग 8 साल पहले डॉक्टर शशि ने लंदन की इसी ऑक्सफोर्ड यूनियन में आकर अंग्रेजों की बोलती बंद की थी और उनको कायर बताया था कि कैसे उन्होंने
भारत को ब्रिटिश इंडिया में लूटा था, जिससे शशि की ये डिबेट काफी पॉपुलर हुई थी। सेम ऐसे ही पालकी शर्मा का ये भारत की नई ऊंचाइयों का प्रदर्शन करने के लिए ये अनबाइस्ड स्पीच प्रतीत हो रहा था, जिसने ऑक्सफोर्ड यूनियन में बैठे ब्रिटिश स्कॉलर्स की बोलती बंद कर दी। और पालकी शर्मा ने सभी को ये गहराई से समझाया कि दुनिया में कैसे भारत अपने खुद के चुने हुए रास्ते पर तेजी से तरक्की कर रहा है, जैसे कि आप इस वीडियो में देखिए। It shows three developments, three of the many developments I shall list out tonight. Number one is financial inclusion. Both the vendors had a bank account linked to their mobile phone. Number two is internet or mobile penetration, what we call digital India. It was 15% 9 years back. It's 48% today. And number three is the airport traffic. It just keeps swelling even though we are at the receiving end. We see what it shows. From 67 million 9 years back to almost double now. To me, these things signify the path that India is on. The previous speakers have defined the motion well, but in case the evening drinks have kicked in, let me repeat. This House believes Modi's India is on the right path. And how do you determine if the path is right or wrong? You look at numbers, data, surveys, reports. I shall refer to all of these as I make my arguments. But I also want to dwell on something that's more personal, more important, I think, yet unquantifiable. I'm talking about the experience of living in today's India. बेसिकली इस वीडियो में पालकी शर्मा इंडिया की ग्रोथ को समझाने के लिए ये बता रही हैं कि आप सभी को नमस्कार, हम आज भारत के पथ पर चर्चा कर रहे हैं। मैं इस सप्ताह की शुरुआत में दिल्ली एयरपोर्ट जा रही थी। यहाँ बहुत भारी ट्रैफिक था। एक जगह पर रोड के साइड में हमारी कार रुकी और तभी मैंने रोड के साइड में दो विक्रेताओं को देखा। इनमें से एक फल बेच रहा था और दूसरा नारियल पानी बेच रहा था। लेकिन जिसने मेरा ध्यान खींचा वो ये था कि दोनों विक्रेताओं के पास QR कोड थे, जिसके माध्यम से वो दोनों विक्रेता अपने ग्राहकों से डिजिटल पेमेंट्स रिसीव कर रहे थे। ये पिक्चर आज के भारत के 3 विकासों को दर्शाती है। पहला, फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी कि वित्तीय समावेशन, यानी कि दोनों विक्रेताओं के पास अपने बैंक अकाउंट्स थे जो उनके पर्सनल मोबाइल नंबर से कनेक्ट थे। दूसरा, इंटरनेट और स्मार्टफोन, जो कि डिजिटल इंडिया के विकास को दर्शाता है, जो 9 साल पहले 15% था लेकिन अब 45% हो गया है। और तीसरा है एयरपोर्ट पर बढ़ रहे एयरलाइन पैसेंजर्स, जो हर साल बढ़ रहे हैं। उम्मीद है कि भारत में एयरलाइन पैसेंजर्स मार्केट 2024 तक ब्रिटेन को पछाड़कर तीसरा सबसे बड़ा यात्री बाजार बन जाएगा। लेकिन ये तो बस एक ट्रेलर था। कहानी में मजा तो तब आया जब पालकी शर्मा ने डायरेक्ट आंकड़ों के साथ ये साबित भी किया कि कैसे भारत ग्लोबल पावर में निस्संदेह बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है। जैसे कि इन्होंने बड़े ही गर्व के साथ बताया कि भारत की पर कैपिटा इनकम साल 2014 में 86,000 रुपए थी, लेकिन अब ये 1,72,000 रुपीज हो गई है। और भारत के ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम को अब भूटान और नेपाल जैसे देश भी यूज कर रहे हैं। और यहाँ पर सबसे जरूरी बात ये है जो हम सबको अच्छे से समझनी चाहिए, वो ये है कि पालकी शर्मा ने भारत की सनातन संस्कृति को ध्यान में रखते हुए ये गर्व से बताया कि जब पीएम मोदी वेस्ट अफ्रीकन कंट्री गिनी में गए थे तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने पीएम मोदी के पैर छुए थे। यह किसी नेता के प्रति व्यक्तिगत इशारा नहीं था, बल्कि यह पूरे भारत देश के प्रति धन्यवाद ज्ञापन था, क्योंकि इंडिया ने कोरोना महामारी में गिनी को कोविड-19 की वैक्सीन दी थी। और ऐसे ही 14 मिनट्स तक पालकी जी ने भारत की नई ऊंचाइयों का प्रदर्शन किया। और इस स्पीच के पूरा होते ही ऑक्सफोर्ड यूनियन में तालियां गूंजने लगी। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ आकाश बनर्जी अंग्रेजों के आगे भारत की एक नकारात्मक छवि बनाने में लगे हुए थे। लेकिन पालकी जी के स्पीच में इनके सभी नकारात्मक स्पीच को दबाने का दम था, जिसकी ऑक्सफोर्ड यूनियन और दुनिया भर के लोगों ने कमेंट बॉक्स में इनकी खुलकर प्रशंसा की। जैसे कि एक यूजर ने लिखा कि पालकी मैम ने अकेले ही पूरे पश्चिम और उनके भारत विरोधी नैरेटिव पर तमाचा मारा है, वह भी सीधा उनके चेहरे पर। बहादुर महिला। एक यूजर ने आकाश जैसे लोगों के लिए लिखा कि भारत को बाहरी लोगों से कोई खतरा नहीं है, भारत में छिपे हुए गद्दारों से ही खतरा है।
जय हिंद। और एक यूजर ने बहुत ही अच्छे से लिखा कि पालकी स्पष्ट ईमानदारी से बात करती है। ऐसा लगता है कि कई लोग जो तथ्यों और क्रूर ईमानदारी में विश्वास नहीं करते, उन्हें पालकी जी से खतरा है, इसलिए उन्होंने उनके खिलाफ घटिया, अपमानजनक और व्यक्तिगत टिप्पणी की है। यह उसे प्रभाषित नहीं करता और भारत के प्रति उनकी सहज नफरत को उजागर करता है। पालकी जी के लिए बहुत सारी प्रशंसा है। पालकी जी अपना सिर ऊपर रखें और सच बोलते रहें। तो दोस्तों, इनके इस पूरे वीडियो का लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कॉपीराइट के कारण या हम पूरा वीडियो लगातार आपको नहीं दिखा सकते हैं, या फिर आप ऑक्सफोर्ड यूनियन के ऑफिशियल चैनल पर ये सारे वीडियोस देख सकते हैं जो इंग्लिश में है। तो ये था पालकी शर्मा का लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आश्चर्यजनक भाषण, जिसने अंग्रेजों और देशद्रोहियों की बोलती बंद कर दी। तो अगर आपको ये वीडियो इम्पोर्टेंट लगती है, यानी कि अगर आपको लगता है कि ये वीडियो करोड़ों लोगों के देखने योग्य है, तो इसको अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करके अपने विचार हमें बताएं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।